So this is the last part of math chapter solids. In the first part we studied about cubes and cuboids, surface area and volume. In this part we are going to study about cross section, yet another interesting topic, very small but interesting. Okay, cross section, the cut which is made through a solid perpendicular to its length or height is called its cross section. जैसे कि ये क्यूबॉइड है, उसके लेंथ के अक्रॉस मैंने उसको ऐसा कट किया तो ये क्यूबॉइड का क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन. वैसे ही सिलेंडर को अगर कट करूंगा तो ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन. सो क्यूबॉइड का क्रॉस सेक्शन जनरली स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप में होता है. सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन जनरली सर्कुलर शेप का होता है. कोन को अगर कट करूंगा तो भी मुझे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मिलेगा. सो बाय कटिंग एनी सॉलिड यू गेट इट्स रिस्पेक्टिव क्रॉस सेक्शन. ठीक है. A solid, see the cross sections which we are going to talk about is uniform cross section. A solid is said to have a uniform cross section if this perpendicular cut is of the same shape and size at each point of its length or height. मतलब तुम कहीं भी कट करो तुम्हें सेम शेप और साइज का क्रॉस सेक्शन मिलेगा. इसका मतलब है कि वो क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, या सॉलिड भी एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन पजेस करता है. इज एवरीवन एबल टू हियर मी वेरी क्लियरली? Yes, sir. ग्रेट. सो क्रॉस सेक्शन से हम लोग कुछ फॉर्मूले बना सकते हैं. एक तो है फॉर्मूला वॉल्यूम का, ये प्लीज नोट कर लो. व्हेन अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, its volume is area of cross section multiplied by the length. Area of cross section multiplied by length is the volume. And surface area excluding the cross section is perimeter of cross section multiplied by the length. Perimeter of cross section multiplied by the length is the surface area. Area of cross section multiplied by the length is the volume. ठीक है. सो ये दो फॉर्मूले हम लोग रिपीटेडली यूज करेंगे, रेगुलरली यूज करेंगे इस चैप्टर में. So let's go to the first solved example. Let me just switch to, yes. Yep. So the first solved example of second part is here. The adjoining figure shows a solid of uniform cross section which is a trapezium in shape. So the cross section is in the form of trapezium. If the length of the solid is 1 meter, find its volume. तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था for finding the volume. Can anybody tell me this formula? Formula for volume with respect to its cross section. मैंने तुम्हें लिखने भी बोला था. Can anybody tell me? Area of cross section into length. Area of cross section multiplied by its length. ठीक है. So area of cross section क्या हो जाएगा? यहाँ पे cross section का area, if you look at this figure very carefully, the cross section has which shape? It is trapezium in shape. ठीक है. So हम लोग क्या लिखेंगे? Area of trapezium times length. Area of trapezium क्या है? Half
into sum of parallel sides multiplied by the distance between them. Length, इसकी length है 1 मीटर, ठीक है. So half into sum of parallel sides, that is 17 plus 23, multiplied by the perpendicular distance between them, that is 10, multiplied by length 1 meter, we can call it 100 सेंटीमीटर, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में तो लेंथ मीटर में नहीं ले सकते. सो दैट इज हाफ टाइम्स 40 टाइम्स 10 टाइम्स 100, ये हो जाएगा 20. सो वी हैव 200 टाइम्स 100, दैट इज 20,000 सेंटीमीटर क्यूब. आई एम सॉरी बिकॉज वी आर फाइंडिंग वॉल्यूम. ठीक है. सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. वेरी सिंपल. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्रॉस सेक्शन के टर्म्स में हमने अप्लाई किया, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ. जो भी क्रॉस सेक्शन का शेप है उसका फॉर्मूला डालो, लेंथ से मल्टीप्लाई करो या हाइट से मल्टीप्लाई करो, एंड यू विल गेट द वॉल्यूम. मेक श्योर द यूनिट्स आर ओके. ठीक है. विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप यू आर ऑल डन विद दिस. अच्छा, so now this next part is about flow of water. So यहाँ भी there are few things you should understand. यहाँ पे एक चीज दिखाई है. If you want, please note it down. Flow of water के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो क्या करना है तुम्हें? If you want to understand flow of water, if water is flowing through a pipe or a canal, etc., of uniform cross section, the volume of water that flows in unit time is equal to area of cross section times the speed of flow of water. अगर वाटर किसी पाइप या कैनाल से फ्लो हो रहा है जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो फ्लो कर रहा है इन यूनिट टाइम, अगर वो तुम्हें ढूंढना है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हें यूनिट टाइम में कितना वाटर फ्लो करेगा वो मिल जाएगा. ठीक है. सपोज यही फॉर्मूला के ऊपर मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा. सपोज तुम्हें ढूंढना है वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing through a pipe in 1 second. तो क्या करोगे तुम? एरिया ऑफ पाइप निकालोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप मल्टीप्लाइड बाय, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे तुम? स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर. ठीक है. अब यह वॉल्यूम कौन से यूनिट में आएगा वो मैं तुम्हें बताता हूं कैसे पता चलेगा. सो क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ पाइप होना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर में, स्पीड ऑफ फ्लो होनी चाहिए सेंटीमीटर पर सेकेंड में. अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तुम तो तुम्हें वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप इन 1 सेकेंड मिलेगा. ठीक है. अगर तुम्हें यहाँ पे 1 सेकेंड नहीं चाहिए लेकिन 1 मिनट चाहिए सपोज, तो तुम्हें आंसर को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर तुम्हें 1 सेकेंड नहीं चाहिए, 1 आवर चाहिए, तो आंसर को 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड, स्पीड के भी यूनिट है, आपस में कन्वर्जन हो सकता है, वो हम लोग देख लेंगे. ठीक है. बट दिस इज द क्वेश्चंस, दीज आर द क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लो ऑफ वाटर. ठीक है. फ्लो ऑफ वाटर के कुछ क्वेश्चंस है, वो देखते हैं हम लोग. लेट्स डू देम.
हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर फ्लोज आउट ऑफ अ पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो हमें क्या ढूंढना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing out is equal to area of cross section multiplied by speed of flow. ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना. ठीक है, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ फ्लो क्या है, इफ द स्पीड ऑफ वाटर इन पाइप इज 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है, सो 5 times 30 is 150 centimeter cube per second. Thank you. So हमें ये पता चल गया कि 1 सेकेंड में, पर सेकेंड लिख देता हूं यहाँ पे, पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना पानी फ्लो आउट कर रहा है. Per second we are getting 150 centimeter cube of water flowing out. Let us write that down. In 1 second 150 centimeter cube of water is flowing out. Therefore in 1 minute how much water will flow out? Can anybody tell me? अगर 1 सेकेंड में 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज फ्लोइंग आउट, तो 1 मिनट में कितना वाटर फ्लो आउट करेगा? क्या हुआ, कोई बोल क्यों नहीं रहा है? इसलिए मैं ऑनलाइन क्लास नहीं लेता, क्योंकि जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछो, नहीं कैसे किया ये मुझे ये जानना है, आंसर नहीं जानना है मुझे. सर मल्टीप्लाई किसको किससे मल्टीप्लाई किया? सर 150 into 6. 150 into 60 ना? सॉरी 60. सो 15 6 90. ठीक है, 15 6 90 और 2 0, मतलब 9000 सेंटीमीटर क्यूब. ये इतने लेट कौन आ रहा है? 15 मिनट लेट आ रहे हैं यार. क्लास ही आधे घंटे का है, उसमें भी 15 मिनट लेट आते हो, कैसे होगा? एनीवेज, सो इन 1 मीटर 9000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर फ्लोज आउट. लेकिन आंसर अभी भी नहीं आया है. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो. क्वेश्चन है फाइंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर फ्लोज आउट. हमने क्या ढूंढा है, 1 मिनट में 9000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज फ्लोइंग आउट. How many liters of water is flowing out? So you should use this relationship that 1 liter is equal to 1000 centimeter cube. Therefore, how many liters will be 9000 centimeter cube, which is equal to 9 liters. Therefore, in 1 minute, 9 liters of water flows out through the pipe. ये तुम्हारा आंसर है. ठीक है, सो दिस इज द मेथड विथ विच यू फाइंड द आंसर टू द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग रेट ऑफ फ्लो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. देयर आर वेरी फ्यू क्वेश्चंस, तो ये क्लास बहुत शॉर्ट होने वाली है. A rectangular tank is 25 meter long, 9.5 meter deep. Okay, लेंथ दिए तुम्हें 25 मीटर और डेप्थ दिए दैट इज हाइट 9.5 मीटर. इफ 600 cubic meters of water be drawn off tank, the level of water in the tank goes down by 1.5 meter. Okay, 600 cubic meters मतलब मीटर क्यूब of water equals
a drop in water level, a drop in water level by 1.5 meter. 600 meter cube of water equals to a drop in water level by 1.5 meter. We have to calculate the width of the tank and the total volume of water which the tank can hold. Okay. So we don't know the width or the breadth. Okay, so we know one thing कि width हमें नहीं पता है लेकिन क्रॉस सेक्शन तो फिक्स्ड है टैंक का. नियति, नियति, कैन यू हियर मी? ओके, तो ये जो टैंक है इसका क्रॉस सेक्शन फिक्स्ड है. ठीक है, क्रॉस सेक्शन मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट will give you the volume. We know that volume of tank is equal to area of cross section multiplied by area of cross section multiplied by height. यहाँ पे height क्यों ले रहा हूँ मैं बताता हूँ. Because if the tank is like this, अगर टैंक ऐसी है और ये उसका लेंथ है और ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ठीक है, सो विल टेक दिस एज द क्रॉस सेक्शन. मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या आएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्या आएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ. और उसके साथ जब हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, उसके साथ जब हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, विल गेट द वॉल्यूम. सो वॉल्यूम ऑफ द टैंक में हम लोग पूरे टैंक को नहीं ले रहे हैं अभी. वी आर जस्ट टेकिंग दिस 600 मीटर क्यूब. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ और हाइट h हो जाएगा. सो 600 इज इक्वल टू लेंथ कितना है 25, ब्रेथ कितना है नहीं पता है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितना है. देखो जब 600 मीटर क्यूब ऑफ वाटर ड्रॉ करते हैं ना हम लोग, तो ड्रॉप होता है वाटर लेवल बाय 1.5 मीटर. तो यहाँ पे हाइट की जगह मैं 1.5 लिखता हूँ. आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस. सो 600 इज इक्वल टू 25 इंटू 1.5 मल्टीप्लाइड बाय द ब्रेथ. इसको वो साइड डिवाइड कर देते हैं. 600 आई एम सॉरी डिवाइडेड बाय 25 टाइम्स 1.5 विच इज इक्वल टू द ब्रेथ. ठीक है, अब हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 5 5 जा 5 12 जा 60, 5 120 जा 3 0.5 जा 3 40 जा, है ना, 5 8 जा. ठीक है, सो ये हो जाएगा ब्रेथ हो जाएगा 16 मीटर. तो हमें क्या ढूंढना था? विड्थ ऑफ द टैंक या ब्रेथ ऑफ द टैंक विच इज 16 मीटर. वो तो आ गया. एंड वी हैव टू फाइंड द टोटल वॉल्यूम विच द total volume of water which the tank can hold. So total volume of tank is equal to length into breadth into height, which is 25 times the breadth, which is 16, times the height, which is 9.5. You multiply karo, you will get the answer. Please find the answer and let me know now fast.
answer is 3,800 meters. Sorry, 3,800. 3,800. 3,800 meter cube. Cool. ठीक है. So very nice simple questions based on cross section. This is supposed to be the last question of the chapter, of this part and the chapter. Chalo, let's do it. So what they're saying here, A, B, C, D, E is the end view of a factory. Do you see, this is the end view they are talking about. What is the shape of this end view? Can anyone tell me? Pentagon. Pentagon, yes. It has got 5 sides, so it's a pentagon. ठीक है. ये पेंटागन में जो विड्थ है that is 8 meter, the height is 7.5 plus 3 meter extra height, and it has got 5 sides. अब इसका एरिया ये है, इसका क्रॉस सेक्शन. दिस इज नथिंग बट द क्रॉस सेक्शन. तो हमें अगर इस क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालना है, कैन एनीबडी सजेस्ट कैसे निकाल सकते हैं एरिया इस क्रॉस सेक्शन का? So what you do is you divide this cross section into a rectangle and a triangle. ट्राइंगल की हाइट पता है, बेस पता है. बेस क्या है? CE. और CE किससे इक्वल है? AB से इक्वल है, क्योंकि ABCE एक रेक्टेंगल है ना, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी. सो वी नो द बेस एंड हाइट ऑफ द ट्राइंगल, वी नो द रेक्टेंगल्स डायमेंशंस. तो ये दोनों के एरिया को ऐड कर दूंगा मैं, तो मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा. मतलब आई नो द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब इसकी लेंथ भी पता है मुझे. ये जो शेड है, शेड, फैक्ट्री शेड बोलते हैं इसको, ये शेड की जो लेंथ है दैट इज 50 मीटर. रूफिंग ऑफ दिस शेड, 50 मीटर लॉन्ग शेड, consist of asbestos sheets. Asbestos is like the roof, the cement type roofs, not the slabs but the roof. जो inclined roofs होते हैं ना सीमेंट के, जो जनरली कच्चे मकानों के ऊपर होते हैं, उसको एस्बेस्टॉस रूफिंग बोलते हैं. ठीक है. The two ends of the shed are completely closed by brick walls. Two ends of the shed को पूरा brick wall से बंद कर दिया. कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम कंटेंट ऑफ द शेड. बहुत इजी है टोटल वॉल्यूम ढूंढना. टोटल वॉल्यूम ऑफ शेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ शेड मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में मैंने तुम्हें क्या बताया था? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये दोनों को लेना है साथ में, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. तुम्हारे सामने एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है ABCE, वो भी है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की हाइट 3 है, बेस 8 है, वो भी है. दोनों को ऐड करो और लेंथ, लेंथ क्या है? 50 मीटर. मल्टीप्लाई करो एंड फाइंड द टोटल वॉल्यूम. द आंसर इज गिवन हियर, बट स्टिल आई वांट यू टू कैलकुलेट एंड नोट इट डाउन. Done, guys?
Done, everyone? No, sir. Did you get 3600 meter cube? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, now let's go to the second question. If the cost of the asbestos sheet roofing is rupees 25 per meter square, find the cost of roofing. मतलब हमको ना जो रूफ है, स्लैंटिंग रूफ, इसके ऊपर एस्बेस्टॉस की शीट लगानी है जिसका कॉस्ट रुपीज 25 पर मीटर स्क्वायर है. तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा? इसके लिए हमें वो रूफ का एरिया निकालना पड़ेगा, और क्रॉस सेक्शन वाले मेथड में एरिया का भी एक फॉर्मूला है. ठीक है. सो एरिया ऑफ रूफ is equal to perimeter of cross section of roof times length. ये जो रूफ है ना, उसके क्रॉस सेक्शन का पेरीमीटर टाइम्स इट्स लेंथ. तो रूफ का क्रॉस सेक्शन क्या है? रूफ का क्रॉस सेक्शन ये है DEC. ED और DC, ED या DE एंड DC. तो DE और DC को हमें ऐड करना है. DE और DC को ऐड करके हमें पेरीमीटर मिल जाएगा. किसका? रूफ का. हमें EC को ऐड नहीं करना है. वी डोंट हैव टू ऐड EC बिकॉज EC तो रूफ का हिस्सा नहीं है. रूफ में सिर्फ DE और DC है. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ DE प्लस DC टाइम्स लेंथ. लेंथ कितना है? 50 मीटर. सो एनी हाउ वी वॉन्ट DE एंड DC. अब ये कैसे मिलेगा देखो. सो सपोज दिस इज द रूफ. यहाँ पे ये D है, ये E है और ये C है. ठीक है. नाउ वी नो दैट दिस हाइट इट इज गिवन टू अस, इट इज 3 मीटर. एंड DE और DC तो इक्वल है क्योंकि ये एक क्या बोलेंगे, एक रेगुलर क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला शेप है. तो DE और DC तो इक्वल होंगे डेफिनेटली. तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है ना फ्रॉम द वर्टेक्स, इट बाइसेक्ट्स द बेस. तो ये जो पॉइंट है इसको हम F नाम दे देंगे. एंड वी नो दैट EC इज 8 क्योंकि AB भी 8 है तो EC भी 8 होगा. मतलब EF विल बी 4 मीटर एंड FC विल बी 4 मीटर. ठीक है. सो व्हाट डू वी नो नाउ? What do we know is in this triangle DEF, DE square is equal to EF square plus DF square. EF square is 4 square plus DF square is 3 square, that is 16 plus 9, that is 25. So DE square हो गया 25 and therefore DE will be 5 meter. This is 5 meter. DC will also be 5 meter. तो मतलब मुझे पता चल गया, ये ड्रॉ करके तुम्हें बताना पड़ेगा साइड में कि DE और DC ढूंढा कैसे हमने. So DE plus DC is 5 plus 5 times 50, that is 25. Sorry, 10 plus 50, 10 times 50, not plus. 5 plus 5 is 10 times 50 and 10 times 50 is 500. So 10 times 50, that is 500 meter square. 500 मीटर स्क्वायर क्या है तुम्हारा? $500 मीटर स्क्वायर है एरिया ऑफ रूफ. रूफ का एरिया आ गया तुम्हारा. अब तुम्हें क्या ढूंढना है? कॉस्ट. सो कॉस्ट ऑफ रूफिंग is equal to area of roof times rate. Area of roof is 500 times rate is 25 per meter square. 125, 00, 12,500 rupees
12,500 तुम्हें कॉस्ट आएगी रूफिंग की। ठीक है, डिड एवरीवन अंडरस्टैंड दिस? हाउ डिड आई फाइंड द एरिया ऑफ रूफ and the cost of roofing? Yes, sir. Great. Now the third question, the last question in this, is that if the whole outside surface of the shed including the roof is to be painted, find the cost of painting it at rupees 5 per meter square. अभी देखो, हमें पेंट करना है पूरे आउटसाइड सरफेस को। अब इसमें मुझे नहीं पता कि फ्रंट और बैक सरफेस भी है या नहीं है। यहाँ पे इनिशियली बोला था the two ends of the shed are completely closed by brick walls and the whole outside surface of the shed including roofing is to be painted. I think I'll just consider the side walls, not the front and back walls. मतलब मैं क्रॉस सेक्शन को ओपन कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि क्रॉस सेक्शन में अगर ब्रिक्स लगा देंगे तो फिर एंटर कैसे करेंगे हम शेड के अंदर। ठीक है, तो फ्रंट और बैक में कोई भी वॉल्स नहीं है, सिर्फ वॉल्स है साइड्स में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पेंटिंग करना है तो हमें वॉल्यूम का जरूरत नहीं है। वी हैव टू फाइंड द एरिया। एरिया, हमें एरिया की जरूरत है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द एरिया। We have to find the area of area required to be painted. Is equal to area required to be painted is equal to perimeter of cross section excluding the floor. ठीक है, फ्लोर को नहीं गिनना है पेरीमीटर में, टाइम्स द लेंथ। तो पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या क्या आएगा अगर फ्लोर को एक्सक्लूड करेंगे तो AE प्लस DE प्लस DC प्लस BC। AE प्लस DE प्लस DC plus BC times length, which is 50 meter. So what is AE plus DE plus DC plus BC? If you see here closely, it is 7.5 plus 5 plus 5 plus 7.5, मतलब 2 times 7.5 है और 2 times 5 है। मैंने फ्रंट और बैक नहीं लिया है, तो आंसर में अगर कोई डिफरेंस आता है दैट मस्ट बी ड्यू टू द फ्रंट एंड बैक। बट एनीवेज विल सी, विल होप दैट देयर इज आवर अंडरस्टैंडिंग एंड assumption is true. ठीक है, so this is 15 plus 10. Yeah, so this is so we are getting just 1250. तो इसमें हमें फ्रंट और बैक का भी एरिया शायद लेना पड़ेगा। तो फ्रंट और बैक का एरिया मतलब ये रेक्टेंगल और ये ट्राइंगल का एरिया, और उसको 2 टाइम्स लेना पड़ेगा। ठीक है, आई डोंट नो, ये तो सिर्फ एरिया है ना, हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, पर फिर भी 6970 नहीं आएगा। अगर ये एरिया को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ, so cost is equal to 1250 times 5, तो ये हो जाएगा 6250। 6290 क्यों आ रहा है उनका? आई एम नॉट श्योर, मेरे को चेक करना पड़ेगा इसको। मुझे तो 6250 आ रहा है कॉस्ट, जो मुझे करेक्ट लग रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? 6970।
So I think that they have taken the front and back area. Let's check. Hmm. 2 into area of cross section plus 2 into area of each side wall. Area of cross section. Yes, area of cross section is the front area. तो पेंटागन का जो एरिया है ना वो है. एक मिनट, let me show you. This is what we have not taken. पेंटागन का एरिया that comes out to be 144 मीटर स्क्वायर. तो अगर मैं इसमें 144 ऐड करता हूँ 1250 में तो 1934 ही होता है. And then we multiply 5, so we get the correct answer. So we were getting short of this front and back or area of cross section, जिसकी वजह से हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा था. तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन ठीक है, ओके वी अंडरस्टैंड, बट जनरली जो शेड्स होते हैं, इंडस्ट्रियल शेड्स होते हैं, ये शेड सिर्फ इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं ऐसे. तो ये जो इंडस्ट्रियल शेड्स है उसमें फ्रंट और बैक में एक्चुअली जनरली कुछ होता नहीं है. अगर होता भी है तो बैक साइड में होता है. फ्रंट में तो जाने की जगह होती है अंदर. सो इन द इनसाइड ट्रक्स व्हीकल्स कैन गो इनसाइड एंड यू नो कैरी द लोड एंड व्हाटएवर मशीनरीज, और उनके जाने की जगह होती है. इट इज़ नॉट कम्प्लीटली ब्लॉक्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स. सो इट इज़ लिटिल स्ट्रेंज कि फ्रंट और बैक में क्लोज दिया है, बट ठीक है, हमें जो भी क्वेश्चन में दिया है वी हैव टू फॉलो दैट. ठीक है. सो this chapter is done here. I'll stop the recording.